that the Prime Minister will be arriving in Ayodhya at 11:30 a.m. He will be at 11:30 a.m. He will be heading to Hanuman Gadi. Now, Hanuman Gadi is the place where the Prime Minister will visit first for 7 minutes. 7 minutes is the time given. Now, it's said that the Ram Janmabhoomi Bhumi Pujan can only happen after you visit the Hanuman Gadi. Hanuman Gadi has 85 steps where the Prime Minister will be going. After that, he will be heading to the Ram Janmabhoomi Bhumi Pujan. Now, right behind me, if I will request the video camera guy to show the viewers, this is the mighty Saryu River. Now, all the 1990s movement, when Mulayam Singh Yadav had stopped the Car Sevaks, this is the exact river from which the Car Sevaks had entered Ayodhya, and the 1990s thing happened. Apart from this, another thing which is very important in Ayodhya is the Car Sevak Puram, where we have the Republic Media Network set, where you have all the testimonies from the Kothari brothers to everything. So Ayodhya is completely lit. Now, because of COVID-19, Niranjan, every street of Ayodhya, from the past 1 month, there is regular sanitization which is taking place, and every house of Ayodhya has ensured that tomorrow they will be lighting a diya in order to celebrate a mini Deepavali. So you will not have a congregation of people. 11:30 onwards, right from 11:30 to roughly 12:45 is where the Prime Minister will be here. After the Bhumi Pujan, he will also be addressing the nation. So it's a very historic moment out here, and everything happens at Saryu. So as around 4 o'clock, after 4 o'clock, you will see a lot of people coming here. In fact, Yogi Adityanath yesterday had visited Saryu, and this is the place from which everything begins. Right back to you, Niranjan. Okay, stay with me. I think we also have Piyush joining us live from Ayodhya. Piyush, can you hear me? Okay, Vivek is live. Let me go across to Vivek also joining us. Vivek, take us to the arrangements in place. Who will be present on stage, and what time is the Prime Minister expected to land? What can we expect on the 5th of August? That's tomorrow. देखिए, कल का जो कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो तकरीबन 9:30 बजे दिल्ली से चलेंगे और तकरीबन 10:35 पे वो लखनऊ लैंड करेंगे, और उसके बाद वो इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से लखनऊ से चलेंगे और 11:40 पर वो अयोध्या का जो साकेत महाविद्यालय में उनके लिए एक स्पेशल वो बनाई गई है जगह, वहाँ पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा, और उसके बाद 11:40 से वहाँ पर उनका स्वागत होगा, और उसके बाद वो हनुमान गढ़ी के लिए चलेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर वो हनुमान गढ़ी पहुँचेंगे, और हनुमान गढ़ी पर कुल मिलाकर के उनका 10 मिनट का कार्यक्रम है। 10 मिनट तक वो हनुमान गढ़ी में रहेंगे, जिसमें 3 मिनट का पूजा पाठ होगा, जिसमें अलग अलग जो वैदिक पंडित हैं, 3 वैदिक वहाँ पे होंगे पंडित जो उनकी पूजा पाठ करवाएंगे, और उसमें देश को कोरोना से निकालने को लेकर के, साथ ही साथ राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण को लेकर के, प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के, इस तरीके से वहाँ पर पूजा पाठ करी जाएगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी वहाँ से निकल करके राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, और सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, और दर्शन के बाद वहाँ पर वो पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 9 शिलाएँ हैं जिनका पूजन करना है प्रधानमंत्री मोदी को, 9 शिलाओं का पूजन करेंगे, और इसके बाद जो पूजन का जो कार्यक्रम है वो समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो है पूजन के कार्यक्रम के समाप्ति के बाद तकरीबन 1 बजे से प्रधानमंत्री मोदी का वहाँ पर संबोधन का कार्यक्रम है। 1 घंटे तक माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी लोगों को संबोधित करेंगे, और इस संबोधन के बाद फिर वो वापस दिल्ली के लिए वापस रवाना हो जाएंगे। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ ये अमावा मंदिर है, और ये जस्ट जो परिसर है ये राम जन्मभूमि के तुरंत बगल में, यानी कि जस्ट बगल का परिसर है। और इस परिसर की खासियत ये है कि कल जब सभी गेस्ट आएंगे तो इस परिसर में तकरीबन 150 ज़्यादा गाड़ियों को पार करने को लेकर के जगह बनाई गई है। ये अभी जो मैं आपको मंदिर जो अंदर लड्डू दिखा रहा हूँ, ये इन लड्डुओं की खास विशेषता है। ये नैवेद्यम विधि पे ये लड्डू बने हुए हैं, नैवेद्यम के तर्ज पर ये लड्डू बनाए गए हैं, और ये सभी लड्डू 1,11,000 लड्डू बने हैं, और ये सब रामलला को चढ़ाए जाएंगे। रामलला को कल जब पूजा पाठ होगी तो रामलला को ये लड्डू चढ़ाए जाएंगे। और इसमें इसकी खासियत ये है कि इसमें जो लड्डू में जो काजू आया है वो केरल से आया है, इसमें जो केसर आया है वो कश्मीर से आया है, इसमें जो घी आया है वो कर्नाटक से आया है, इसमें जो कारीगर हैं वो तिरुपति से आए हैं। तो आप समझिए कि कितनी विविधता है और कितनी भव्यता है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। हालांकि कोविड के चलते जो अंदर का जो कार्यक्रम है उसमें पहले तकरीबन 250 लोगों की बात कही जा रही थी, फिर 200 लोगों की बात हुई, अभी तकरीबन 150 से 160 की लिस्ट है जो कल कार्यक्रम में शामिल हो रही है। और रही बात स्टेज की, तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कुल 4 लोग और होंगे जो स्टेज पर होंगे, यानी कि कुल 5 लोग होंगे जिस स्टेज पर प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। उसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी होंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगी, सरसंघ चालक मोहन भागवत होंगे, साथ ही जो उस स्टेज का
संचालन करने के लिए स्टेज का संचालन चंपत राय करेंगे और जो ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास वो मौजूद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 लोग होंगे जो स्टेज पे रहेंगे और साथ साथ मंच का जो संचालन है वो चंपत राय करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मोटा मोटा एक जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो ये है। बड़ी चीज़ ये है कि पूरी अयोध्या को पीताम्बरी रूप में एक तरीके से सजाया गया है। जो भगवा पताकाएं हैं वो पूरी अयोध्या में लगाई गई हैं। पूरी अयोध्या को एक दुल्हन की तरीके से सजाया गया और बड़ी चीज़ ये है कि आज और कल यानी कि 4 अगस्त और 5 अगस्त को अयोध्या में भव्य दीपावली मनाई जा रही है। यानी कि हर एक घर अपने घरों के आगे 21-21 दिए जलाएगा रात में और इसी तरीके से सभी मठ मंदिरों में रामायण का जो पाठ है वो शुरू हो चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तरीके से आह्वान पर जो उत्तर प्रदेश में और जो बाकी धार्मिक जगह हैं, चाहे वो काशी हो चाहे वो मथुरा हो, इनफैक्ट उन्होंने अपने गोरखपुर का जो गोरखनाथ मंदिर है वहाँ पर इसी तरीके से अन्य जितने भी धार्मिक स्थल हैं सभी से आग्रह किया गया है कि वो भी अपनी जगहों पर रामायण का पाठ करवाएं और लगातार 24 घंटे रामायण का पाठ चलेगा। आज और कल एक भव्य दिवाली के रूप में मनाई जाएगी, दिया जलाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राम राज्य वापस आने को लेकर के यूं कहें कि राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है।